नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालजाड़ आपके साथ। आधुनिक युग में विज्ञान के साथ जुड़ा है दिव्य चमत्कार। जी हां, हम बात करते हैं उदयपुर जिले के ऋषभदेव क्षेत्र से, जहां करीब ऋषभदेव से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित मसारों की ओवरी जो गांव है, इसमें महाकाली धाम के नाम से एक ऐसी धाम है जहां पर ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जो विज्ञान भी संभव नहीं कर पाया है। जी हाँ, ऐसे दाम से जुड़ने से, इसकी पूरी जानकारी देने से पहले आइए रूबरू कराते हैं यहाँ के कुछ ऐसे पर्चों से जो कि विज्ञान के बस में भी नहीं था। बोलो महाकाली मात की बोलो चंडे मात की वो अत्र तत्र सर्वत्र ની જનેતા હું અખિલ બ્રહ્માંડની ભગવતી હું પાવાની પટરાણી મહાકાળી મારા ભક્તોના કલ્યાણ કરશો મારા ભક્તો તથાસ્તુ પવિત્ર મન અને પવિત્ર શ્રદ્ધાના જોડે જ્યાં ભક્ત દેવી શક્તિઓના પવિત્ર મનથી પુકારો કરશે પેલા બેડા પાર કરશો તથાસ્તુ મારો પવિત્ર દીપક આપ કલ્યાણ વસ્તુ એક એક ભક્તોનું બેસવાનું મારે જોડે દૂજાનું મંદિરે છોડી દેવાનું કેનો ના રહેવાનું મારા ભક્તો નિવેદન કરું તો મંદિરે છોડી દેવાનું એવો પાપ પવિત્ર મારા જોડે નામ મૂકવાનું મારા ભક્તો કલ્યાણ રહેશે
આ જગતમાં દેવી શક્તિ આ જગતનો મારા મને પુષ્પોથી પવિત્ર માળા આપે એના જોડે આહવાનની જોડે ભક્તોનું કલ્યાણ નથી કરે છે મારા ભક્તો. મારા ભક્તોનું મન પવિત્ર જુએ છે. મન પવિત્ર, તન પવિત્ર અને વાણી પવિત્રના જોડે જ્યાં ભક્તમય બહુ ભક્તિ ભાવના ચોખી છે, બહુ વાલી લાગે છે મારા ભક્તો, બહુ વાલી લાગે છે. તથાસ્તુ. બોલ સોમુરાજ છે માતાના જોડે. ઠીક કર દઈએ મુરાદેવજી. તથાસ્તુ. આજે રાત્રિનો પવિત્ર 21 પ્રકારના ફળ ત્યાંથી નમન થશે. દેવી શક્તિઓની 2 શક્તિઓ પ્રવેશ પડશે એટલેથી એના આ પીડાનો નાશ પડશે. તથાસ્તુ. કલ્યાણ હશે. તથાસ્તુ. દૂજા ભક્તોનો બેસાડવાનું શીઘ્રતાથી, એટલે બહુ બધો સમય નથી માતાના જોડે મારો ભક્ત. તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. એને પીડાનો નાશ કર્યો છે, પણ એનો અલ્પ ઉતારો અધૂરો છે. આજે રાત્રિ પૂરણ પડશે. એના પછીથી શરત છે, કશો નથી થશે. કલ્યાણ રહેશે મારો ભક્તો. તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. તારી પત્નીને દેવી શક્તિઓના અખંડ આશીર્વાદના જોડે એનું જીવન સફળ થયું છે. મન અને સાધનાના જોડે આ જગતને સત્કર્મ કરો મારો ભક્તો. તારા વિફળ ત્યાંથી નમન થશે, પૂરણ પડશે મારો ભક્તો. તથાસ્તુ. કલ્યાણ રહેશે. કલ્યાણ રહેશે મારો ભક્તો. કલ્યાણ રહેશે. તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. કલ્યાણ વસ્તુ. आप दोनों ये बता दो ये मालूम तो मुराद से माता ना जोड़े. क्या हिसाब से बीमार हुआ किडनी खराब है डायलिसिस ચાલે છે. એનો વસ્ત્ર ઉતારી બેસાવાનું, મંદિરે છોડી દેવાનું, કેનો રહેવાનું નથી. ठीक कर देना मेरे मां બોલેલું છે તારી વા મેલી શક્તિ જેટલી શીઘ્ર નીકળશે એટલો તને આ આયુમાં સંતાન પ્રાપ્તિનો જે વરદાન મળેલો છે વા પૂરણ પડશે. કલ્યાણ વસ્તુ. તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. સોમુરાજ છે તને બહુ મોટી જ્યાં અનભેદ્ય પીડા છે. આ પીડા તો તને સરસ કરીને તને પુનઃ જીવન આપેલું છે. તારો એટલું કર્મ છે કે આ જગતમાં દિન દુઃખોનું કલ્યાણ કરવાનું. એક અલ્પ નાનકડી નો કન્યાનો અનુભવ કરાવવાનો તને એટલી મોટી પીડાનો સરસ કર્યો છે, તો એટલો અલ્પભોગ અલ્પ કન્યાનો આપવા તો મારા ભક્ત જીવનમાં સત્યાર્થ આવે છે. દેવી શક્તિઓના અખંડ આશીર્વાદ પ્રદાન મળે છે, બોલવાનું નથી. કલ્યાણ રહેશે. તથાસ્તુ. દૂજા ભક્તોનું બેસવાનું મારા ભક્તો. जल्दी जो भी बोलना है जल्दी बोल. કલ્યાણ રહેશે. કલ્યાણ રહેશે. પીડાનો નાશ પડશે. લેપ બનાવવાનો યાથી એક બેડ પુનઃ લેવાની. કલ્યાણ રહેશે. બધાય ભક્તોનો એક સાથે બેસી જવાનું, જેટલા ભક્તજન છે બધા જણનો બેસી જવાનું, એક સાથે બેસી જવાનું. બહુ બધો સમય નથી છે મારી જોડે. તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. કલ્યાણ રહેશે મારા ભક્તો. કલ્યાણ રહેશે. કલ્યાણ વસ્તુ. કલ્યાણ રહેશે. કલ્યાણ રહેશે. તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. બધા ભક્તોનું કલ્યાણ રહેશે. તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. सबको आशीर्वाद देवे माता. તથાસ્તુ. सभी जातों કલ્યાણ વસ્તુ. કલ્યાણ વસ્તુ. કલ્યાણ વસ્તુ મારા ભક્તો. એવો કાસો રાત્રિની મનની મુરાદો પૂરણ પડશે. તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. કલ્યાણ વસ્તુ. કલ્યાણ રહેશે. મારા છોડવાનું મારું. તથાસ્તુ. तथास्तु कल्याण से। जैसा कि दोस्तों श्री महाकाली धाम के बारे में हमने आपको बताया था, यहाँ के पर्चे के बारे में बताया था, यानी कि चमत्कार के बारे में भी बताया था,
और यहाँ के चमत्कार या पर्चों से जो सही हुए हैं वो सर हमारे बीच में बैठे हैं और इनसे मुलाकात करते हैं कि किस तरह की इनकी समस्याएं थी और किस तरह से पूर्ण रूप से सही हो चुके हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम दर्शत कुमार मेघवाल है और मैं शिक्षक हूँ, प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। और मुझे जो है वो स्लिप डिस्क, जिसको विज्ञान में बोलते हैं, और कमर दर्द की समस्या थी। मैं चल नहीं पाता था बिल्कुल। यहाँ पे भी मुझे 2 जने पकड़ के लेके आए। ये कितने समय से आपको समस्या थी? सर मुझे ये जो प्रॉब्लम है 2008 से थी। इस बीच 2013 में मेरा ऑपरेशन करवाया। पुनः ये 2018 में मुझे वापस समस्या हुई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही बताया कि भाई वापस से ऑपरेशन होगा और इस बार अंदर इम्प्लांट लगेगा, यानी कि स्क्रू लगेंगे अंदर, और ये अनवरत चलता रहेगा। ये जो प्रक्रिया है ये पुनः वापस आपको 8 साल या 10 साल बाद वापस करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से हम सब लोग परिवार में दुखी हो चुके थे, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं हॉस्पिटल के नाम नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन वो बताएंगे आप कहाँ कहाँ आप इसको लेके आप गए हुए? मैं पर आपको लास्ट ऑपरेशन दे दिया था वापस? मैं सर इसके लिए अहमदाबाद, उदयपुर, बिहार के पटना, इंदौर, सब जगह गए। सभी जगह सभी डॉक्टरों ने एक ही बात बोली कि बिना ऑपरेशन के आप चल नहीं सकते। उसके बाद में आप यहाँ पर जिस दाम के बारे में आप बात कर रहे हैं, इस दाम पर आप कब आए थे और कितने समय में और क्या प्रक्रिया रही? इस दाम पे मैं पिछले 1.5 साल से आ रहा हूँ। जब पहली बार आए यहाँ तो माता जी का जो चमत्कार या पर्चा हुआ, उस दिन ही विश्वास हो चुका था कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ का जो पूरा परिवार है वो शिक्षित है। परिवार में जो गुरुजी जो है वो खुद मेडिकल साइंस में है, विज्ञान में है। उनके जो घर से भाभी जी हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग में है। पिताजी जो हैं वो प्राध्यापक हैं शिक्षा विभाग में। तो कहीं न कहीं ये अध्यात्म से उनका जुड़ाव जो है वो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लेके आया और हमें पूर्ण विश्वास दिलाया हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे। तो सर क्या हुआ था फर्स्ट में, जब आपसे क्या प्रक्रिया रही होगी, आपको यहाँ पे फर्स्ट में बुलाया था? क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि हम 2 जने यहाँ पकड़ के लेके आए थे, इवन आप चल नहीं पा रहे थे, तो उसके बाद में यहाँ पर ऐसा क्या करवाया गया था आपको? जब माता जी का चमत्कार या पर्चा हुआ, उस समय मुझे माता जी के सामने भी नीचे नहीं बैठ पा रहा था। मुझे कुर्सी पे बिठाया गया और माता जी ने बोला कि भाई इनके लिए फल या नमन जो उतारा होता है वो करना पड़ेगा। उसके लिए 11 प्रकार के फल मंगवाए गए और वो फल उतारा करवा के वापस मुझे ही खाने के लिए दे दिए। बस ये एक सिंपल सी प्रक्रिया थी। इसके अलावा जो नियम थे वो अपनी जो दिनचर्या है उसको कहीं पे भी प्रभावित नहीं कर रहे थे। सिर्फ तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ऐसे क्या नियम रखे हुए थे आपको जो दिनचर्या को प्रभावित नहीं किया था, लेकिन यहाँ के बंधनों में बंधना जरूरी था? शुरुआत के 7 दिन और 11 दिन जो है थोड़े से अपने लिए नियमों के लिए पाबंद थे। उनमें आपको गृहस्थ जीवन का त्याग करना था और एक जो रुद्राक्ष है वो धारण करना था। उसके बाद आप पूर्णतः एक नॉर्मल जो आपकी दिनचर्या है उसमें रहने लग जाते हैं। किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी आपको रहना है, अच्छा आचरण करना है और सत्य वचन का पालन करना है। शराब को लेकर क्या प्रतिबंध? शराब पूर्णतः वर्जित है, आप उसके संपर्क में भी नहीं आए। पूर्ण शाकाहारी और शराब प्रतिबंधित, यही नियम रखा है? ये यहाँ का यही नियम है। तो फिर आप कितने समय में लगभग रिकवर होने लगे? सर यहाँ आने के बाद मैं 2 महीने बाद तो लगभग 50 से 60% ठीक हो गया। उसके बाद माता जी का पूर्ण पर्चा हुआ। उन्होंने कहा अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सुबह शाम आप अपने घर पे अध्यात्म या 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अपन जैसे समय मिले आप ध्यान लगाएं, बस आप ठीक हो जाएंगे। तो मुझे 4 महीने मुश्किल से लगे होंगे
शुरू दिन से, मतलब फर्स्ट दिन से लेके चौथे महीने तक मैं पूर्णतः ठीक हो चुका हूँ और आज मैं चल रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पूर्णतः नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा ही है, रूबरू जो कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार को चमत्कार या चमत्कार को नमस्कार जो कह सकते हैं, ये आपके सामने हैं। इनको पूर्ण रूप से जो बैठ नहीं पा रहे थे, ये चल रहे हैं, इनकी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा चमत्कार हुआ है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा खर्चा भी हुआ होगा। हमारे मन में ज़रूर सवाल आता है, तो पूछ लेते हैं कि आखिर आपकी कितना खर्चा हुआ है? सर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो प्रसाद लाने की भी नहीं कहा जाता है। जो अपन नारियल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं किसी मंदिर पे, चढ़ावे के नाम पर किसी प्रकार का कोई वो भी कुछ नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं। जो फल मंगवाए गए थे वो नमन करके पुनः अपने को ही खाने के लिए दे दिए जाते हैं। या आप जो कुछ अगर आपकी श्रद्धा से प्रसाद लेके आते हैं, नारियल या फल फ्रूट कुछ भी, तो वो वापस जातरुओं में वितरण करवाए दिए जाते हैं उसी समय। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों एक अंतिम सवाल हम आपके सामने भी उठ रहा होगा और मेरे भी ये जो बता रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से सही हो चुका था, तो मेडिकल विभाग में क्या आपने इस चीज़ की पुनः जांच की है और उन डॉक्टरों से आप मिले हैं जिन्होंने ये बोल दिया आपको कि ऑपरेशन होगा, और मिले हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल सर, मैं पिछले 2 या 3 महीने पहले ही वापस डॉक्टरों के पास गया, दिखाया मैंने, जांच भी करवाई, तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है, कैसे हुआ। क्योंकि डॉक्टरों ने तो यही कहा था कि आप चल नहीं सकते, आपको पैरालिसिस हो जाएगा कुछ समय बाद, आप जितना जल्दी हो उतना ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन जब मैं पूरा उनके सामने चल के गया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो ये अध्यात्म की जीत है। धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता, ये सभी एक साथ मिलकर अगर कार्य करना शुरू कर देती है तो कहीं न कहीं विज्ञान को भी चैलेंज कर देती है। उसी का उदाहरण हमारे सामने कि जहां मेडिकल विभाग ने ऑपरेशन के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर कंसल्ट कर दिया था, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को चलते आज हमारे बीच में सर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो ये पर्चा ही नहीं, यहाँ इस दाम का हम एक और हमारे बीच में इस तरह से कंटिन्यू 2-3 वक्तों से आज हम रूबरू कराएंगे। और ये यहाँ पर जानकारी मिली है कि ये आज से नहीं हो रहा है, 1850 से इस दाम पर ये चमत्कार होते जा रहे हैं। लेकिन हमें आज जिस तरह से पता लगा तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के जो वक्त हैं कुछ आज मिले हैं, लेकिन लगातार हम आपको इस दाम के बारे में अपडेट देते रहेंगे। और इसके बाद हम एक आपको बने रहिए अभी हमारे साथ में, क्योंकि अब ऐसे वक्त से मिलाने जा रहे हैं जो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतनी बड़ी बीमारी थी और उससे भी वो निजात पाकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। श्री महाकाली धाम मसारों की ओवरी में एक और भक्त हमारे बीच में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए और ऐसी कौन सी भयानक बीमारी इनको हो चुकी थी जहां पर डॉक्टर मेडिकल विभाग ने पूर्ण रूप से हाथ खड़े कर दिए थे और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि सेवा करें। जी हाँ, ये आप सुन पा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आपके सामने जो बैठे हुए हैं ये पेशेंट के रूप में थे, अभी इस जो महाकाली धाम है यहाँ के भक्त बन चुके हैं। जानते हैं कि किस तरह का इनका परिचय है और किस तरह की वो बीमारी थी। क्या नाम है भाई साहब आपका? पुष्कर लाल। पुष्कर जी, कहाँ के रहने वाले हो? प्रतापगढ़। आपको क्या बीमारी थी? सीधा सीधा पूछें। हाँ, ब्लड कैंसर। कैसा पता लगा? डॉक्टरों ने बताया। कहाँ कहाँ पता किया आपने? उदयपुर जांच करवाई, फिर अहमदाबाद गए, वहाँ पे जांच करवाई। उसके बाद में क्या कहा डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड कैंसर है तुम्हारे। तो ब्लड कैंसर में तो बाल भी उड़ते हैं क्या आपके? हाँ, बाल भी उड़ गए थे सारे। अच्छा, तो ब्लड कैंसर में आपके किस तरह का इलाज चल रहा था? वो थेरेपी भी लगवाई। कीमोथेरेपी की? हाँ। अच्छा, फिर भी नहीं हो पाया? फिर भी नहीं हो पाया। क्या बोल रहे थे लास्ट में तो उन्होंने बता दिया कि कुछ नहीं हो सकता है। परिवार की क्या आशा है? परिवार की आशा छोड़ दी थी परिवार ने, पूरे परिवार वालों ने। क्या लगा अब? हाँ, क्या मुझे भी आशा नहीं थी कि मैं बच पाऊँ। अच्छा, तो उसके बाद में आप इस दम पर कब जुड़े? करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। आने के बाद में आपको क्या फर्स्ट में यहाँ पे आया मैं, उसके बाद ये दाम पे फल दिए कुछ। 11 फल दिए, वो खाए मैंने। उसके बाद 4-5 दिन में फर्क दिखने लगा और 11 दिन में मैं स्वस्थ हो गया, पूरे स्वस्थ हो गया।
तो आप ये बताएं कि आपको यहाँ पे किन नियमों में बांधा गया था, ऐसे क्या नियम रखे थे जिसकी वजह से आपको यहाँ पे धाम से जोड़ा गया? ये दारू नहीं पीना है और दारू पीने वालों के पास भी नहीं जाना और ये मांस मदिरा ये भी नहीं खाना। अच्छा, हाँ ये पाबंद रखा हुआ। हाँ ये पाबंद। अच्छा, ये बताएं अभी साहब कि आप जब यहाँ पर आए थे तो आपको विश्वास था कि मैं सही हो जाऊंगा? विश्वास तो नहीं था पर धाम पे आने के बाद विश्वास हो गया कि तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे सिर्फ फल फ्रूट देने के बाद में आपने खाए और 11वें दिन आप स्वस्थ हो गए, तो कितना चढ़ावा तो लिया होगा ना? कुछ नहीं लिया यहाँ पे। खर्चा वर्चा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लिया यहाँ पे। अच्छा, तो इन्होंने तो बता दिया आप स्वस्थ हो चुके हो, आपका शरीर भी मान गया स्वस्थ हो गया, तो फिर आपने वापस मेडिकल जांच करवाई? क्या बताया मेडिकल जांच? मेडिकल जांच में ये बताया रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, सारी रिपोर्ट। आपको विश्वास हो गया? हाँ। एक ही बार करवाई या 2-3 बार करवाई? 2-3 बार फिर? हाँ। तो 2-3 बार क्यों करवाई आपने? एक बार में आगे एकदम नॉर्मल? मुझे विश्वास नहीं था कि रिपोर्ट सही आई। अच्छा, यहाँ पे दाम पे जुड़ने के बाद भी आपको एक बार विश्वास नहीं हुआ? हाँ। तो हमने वापस जांचें करवाई? वापिस करवाई, फिर भी वही आई? हाँ फिर नॉर्मली आई। उसके बाद क्या लगा? उसके बाद लगा कि मैं स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, कहते हैं कि विज्ञान, चमत्कार, धार्मिकता, आध्यात्मिकता ये कई लोगों के परे होती है, लेकिन ये साक्षात आपके सामने में जो मैं इंटरव्यू दिलवा रहा हूँ, ये वो पेशेंट है, ये अब वो वक्त कह सकते हैं अब, जिन्होंने अपने जीने की आस छोड़ दी थी, परिवार ने पूरे जीने की आस छोड़ दी थी, क्योंकि जहाँ डॉक्टर सबसे बड़ा भगवान का रूप माना जाता है, उन्होंने बोल दिया था कि ब्लड कैंसर है, कीमोथेरेपी हो रही थी, अब इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने परिवार को भी बोल दिया आप सेवा करें, लेकिन फिर भी इस धाम से जुड़ने के बाद में आज हमारे बीच में ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इनसे जानते हैं कि कितना समय हो चुका है आपको स्वस्थ हुए। धाम से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? करीब 6 महीने हो गए। पिछली नवरात्रि में आए थे यहाँ। पिछली नवरात्रि करीब 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और ये धाम से जुड़े हुए हैं और अपने सामने बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी विज्ञान की बजाय आध्यात्मिकता की जीत हुई है और धार्मिकता की जीत हुई है और हमारी आस्था की जीत हुई है। तो इनसे जानते हैं कि ये हमारे जो धाम से जुड़े हुए जो भक्त हैं, तो ये हमारे क्षेत्रवासियों को या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जैसे स्वस्थ हुए, तो आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हमारे आपकी न्यूज़ को या जो क्षेत्रवासी हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप इस धाम को लेके? ये धाम तो बढ़िया है, यहाँ पे अच्छा चल रहा है। आप जैसे आप भी कैंसर से पीड़ित थे, ब्लड कैंसर से पीड़ित? हाँ, ब्लड कैंसर। ऐसे अगर कोई लोग हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए वो यहाँ पे आए और धाम से जुड़े तो ठीक हो सकते हैं, जैसे आप हुए? हाँ, मैं हुआ जैसे। तो इससे बड़ा चमत्कार आज इस कलयुग में देखने को कहाँ मिलेगा, जहाँ पूर्ण रूप से अब डॉक्टर भी कहीं कहीं हाथ खड़े कर देते हैं कि ब्लड कैंसर का इलाज होना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आज महाकाली धाम जो कि उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है, ऋषभदेव से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर ब्लड कैंसर के जो पेशेंट हैं वो भी सही होकर आज महाकाली धाम के भक्त बन चुके हैं। तो मैं क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा, अगर आपके आसपास में, मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस गलत है, मैं ये नहीं कहता कि आज का विज्ञान गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ विज्ञान और मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ आध्यात्मिकता, धार्मिकता वो आज भी जिंदा है और वो आज भी अपना चमत्कार किए बिना, क्योंकि कलयुग में जब जब पाप बढ़ा है वहाँ कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति का अवतार हुआ है। तो वो ईश्वरीय शक्ति का अवतार आज मसारों की ओगरी में श्री महाकाली धाम के रूप में अवतरित हैं। तो मैं उन सभी भक्तों से कहना चाहूँगा या उन ब्लड कैंसर के पीड़ितों से कहना चाहूँगा कि आप मेडिकल साइंस के साथ साथ एक बार इस धाम पर जरूर आएँ, क्योंकि जो हमारे बीच में भाई साहब बैठे हैं वो स्वस्थ हैं, तो कहीं न कहीं ये माता जी की कृपा आप पर भी हो सकती है, आप भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आप एक परिवार के अनमोल रत्न हैं, तो आप परिवार के बीच में पुनः फूल सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, परिवार का अंश बने रह सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम महाकाली धाम के गुरु जी से मुलाकात करने गादी पर पहुंच चुके हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस गादी की महिमाएं हैं और किस तरह से गुरुजी के प्रवचन हैं, गुरुजी की क्या भावना है, ये गादी कब से शुरू हुई है और कब से लोगों का कल्याण होता आ रहा है और कब से यहाँ कर परिचय होते जा रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में वंदन और आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले गादी के बारे में बताएं। सभी को जय मातेश्वरी।
आप सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। यह अखंड गादी इस ब्रह्मांड में, इस कलयुग में निर्धनों, लाचारों की दुख दुविधाओं को, उनकी बीमारियों को हरने के लिए यहाँ पर मातेश्वर की अखंड कृपा हुई है। हम सभी इस कलयुग के भक्त जन है जो मातेश्वरी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस अलौकिक संसार में माँ का गुणगान कर रहे हैं। तो हम इस पूर्ण दुनिया में, जगत में यही माँ का अखंड गान करते हैं कि सत्य भावना के साथ, सत्य गुणों के साथ यदि अखंड भक्ति की जाए तो साक्षात परब्रह्म ईश्वरी शक्ति का हमें मार्गदर्शक अवश्य प्रदान होता है। बोलो जगदम्बे माते की जय। गुरुजी, आपके प्रवचनों का नमन। सभी को आपने ये आशीर्वाद दिया था कि सत्य वचन से ही हमें ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो मैं अब छोटा सा धाम के बारे में जानना चाहूँगा कि ये धाम कब से चल रही हैं और कब से कृपा बनी हुई है? यह धाम हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित हुआ था 1850 में, जिनके अखंड पर्चे उस समय में स्थापित थे। और यह इस समय में 2008 से यह पर्चे मुझ पर माँ की कृपा हुई है, जो अभी 2023 तक माँ की अखंड कृपा से अनेक दिन दुखियों का भला हो पाया है। माँ जगदम्बे की अखंड कृपा से सभी लोग देवी शक्तियों का अखंड मन तन भावना से गुणगान करते। मैं आपके यहाँ दर्शन, यहाँ चरण वंदन से पहले दो भक्त मिले थे। एक भक्त काफ़ी पीड़ित थे, यूँ कह सकते हैं ब्लड कैंसर से, जिनका आपकी यहाँ पर पेड़ी पे आने के बाद में उनका एक चमत्कार कह सकता हूँ मैं, इलाज में ये चमत्कार हुआ है। तो ऐसा इस कलयुग में कैसे संभव हुआ है? ऐसे इन भक्तों पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि ये कृपा उन पर भी बन जाए? इस ब्रह्मांड में माँ की यही अखंड माया है कि इस ब्रह्मांड में भगवान है या नहीं है, यही इस कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कारिक, माँ भवानी का साक्षात बड़ा पर्चा कहा जाए, वह सबसे बड़ा यही है कि यहाँ मातेश्वरी की अखंड आशीर्वाद से कैंसर नामक बीमारी का उपचार किया जाता है। उन्हें औषधियों के माध्यम से यहाँ की प्रकृति द्वारा निर्मित मातेश्वरी के चरणों में फल नमन करवाकर उनकी अखंड माया से उन फलों को उन रोगियों को ग्रहण करवाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा का नाश हो और वह पुनः मातेश्वरी के चरणों में नतमस्तक होकर वंदनीय बने। बोलो जगदम्बे माते की जय। गुरु जी, एक अंतिम सवाल था। अगर इस संदेश के बाद में यहाँ पर कोई भी भक्त किसी पीड़ा को लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? किस तरह का पाबंदी कह सकते हैं, संदेश कह सकते हैं, यहाँ के नियम कह सकते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा। इस धाम का प्रथम सबसे पहला नियम यही है कि हम मनुष्य हैं, तो हमारा प्रथम नियम यही कहता है कि हम प्रकृति द्वारा जो निर्मित अन्न है उसी को ग्रहण करें। हम मांस मदिरा का त्याग करें। हम जो मादक पदार्थ है उनका त्याग करें। हम हमेशा अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें। सत्य वचनों के साथ अपना जीवन का यापन करें और हम हमेशा देवी शक्तियों का, उनका तन मन और साधना से गुणगान करें। तो इस धाम पर हर मनुष्य की पीड़ा को हर लिया जाता है। तो जैसा कि माँ जगदम्बे के चरणों में नमन करते हुए हम इस धाम पर पहुंचे हैं और गुरुजी से मुलाकात हुई थी, और गुरुजी के जो वचन है, सत्य वचन, परवचन कह सकते हैं, आशीर्वचन कह सकते हैं, सीधा सा बताया था। पूर्ण सात्विक जीवन वाले ही इस धाम से जुड़ सकते हैं। उन्हीं को यहाँ पर आने के, और जो भी रोगी हैं उनके कट रहे हैं, और गुरुजी के बाकी माध्यम से, सत्य वचन के माध्यम से जो हो रहा है वो पूरा बताया था। और इस धाम के बारे में हमने पूरा बता भी दिया था कि कहाँ ये धाम है और कितने किलोमीटर की दूरी पे है। एक बार पुनः बताना चाहूँगा, उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर, ऋषभदेव से मसारों की ओवरी जो दूरी 8 किलोमीटर है, यहाँ पर महाकाली के नाम से ये धाम है। यहाँ पर आप भी आएँ और किसी प्रकार का कोई भी संशय है तो आप भी दर्शन मात्र से ही आपके संशय दूर होंगे। धन्यवाद।